Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 2, Kings, Farmers and Town. My dear student, today we will try to understand the topic new notion of kingship, chiefs and kings in the south. My dear, if you have remember, I was discussed about the Tamalikam regions. Now, when I taught you about the Ashokan inscriptions, I discussed there the some south provinces or states which was in the independent condition like Chol, Pandya, Keralput, Satyaput and such type of others. This is very important things which you have to understand that in the northern part of India during 3rd century BC, the Mauryan Empire 3rd to 4th century BC, the 4th to 3rd and 3rd to 2nd, 150 years era that was ruled in the near about whole Indian continent by Mauryan dynasty. But during that time, some small dynasties, small rulers also they were in existence. Chief and kings in the south. If you will read 4.1 topic, on the basis of that you can easily understand that what I am saying. The new kingdoms that emerged in the Deccan and further south, including the chiefdoms of the Cholas, Cher and Pandya in Tamalikam, the name of ancient Tamil country, which included part of present-day Andhra Pradesh, Kerala, and addition to Tamil Nadu, provide to be stable and prosperous. We know about these states from the variety of source. For instance, the early Tamil Sangam text contain poems describing chiefs and the way in which they acquired and distributed resources. Many chiefs and kings, including the Satvahans, who ruled over part of the western and central India, 2nd century BC to 2nd century AD, and the Saka people of Central Asian regions, Central Asian origin, who established kingdom in the northern western parts of the subcontinent derives the revenues from long distance trade. Their social origins were often obscure. But as we will see in the case of the Satvahans, once they acquired power, the attempt to claim social status in the variety of way. My dear student, if you will try to understand this paragraph, author want to inform you about the small dynasties and their ruling areas. The Tamalikam region, now present day, as you know that it is called the Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh, and some part of the Karnataka also, that was the part of Tamalikam regions. The Sangam literature was very famous literature. It was running on 1999 year, in which the various poems that was compiled by that was wrote by different sagas, and this gives us the various information about the southern early state. Chol, Cher, Pandyas, and the mid-Indian continent Satvahans and northwestern Sakas. These rulers ruled particular that regions. Here one more thing which is very important, which I want to clarify you, that कि चीफ एंड चिफडम्स कौन थे. तो ये आपके बुक में क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो कहता है कि अ चीफ इज पावरफुल मैन whose position may or may not be hereditary
a diverse support from his king folk. His function may include performing the special rituals, leadership in warfare, and arbitrating the disputes. He received gift from subcontinents, subordinates. He received gift from his subordinates and often distributes these amongst his supporters. Generally, there are no regular armies and officers in chiefdoms. My dear, चीफ कौन थे? ये चीफ्स एंड चिफ्टम्स कौन थे? ये छोटा सा कबायली समाज रहा होगा, उसके मुखिया को चीफ्स और चिफ्टम्स कहा जाता होगा। इनकी स्थिति कुछ ऐसी ही थी जैसे कबीलों के सरदार होते थे। इनका पद आनुवांशिक हो सकता था और इनका पद आनुवांशिक नहीं भी हो सकता था। ये अपने पद को बनाने के लिए अपने लोगों का सहयोग प्राप्त करते थे और उसके साथ साथ कुछ अपने यहाँ के सांस्कृतिक प्रावधान, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अपने को इन्वॉल्व रखते थे। युद्ध काम, नेतृत्व प्रदान करना, कुछ आपसी विवाद के झगड़ों का निपटारा, ये इनका प्रमुख काम होता था। गिफ्ट लेना अपने अधीनस्थों से और फिर उस गिफ्ट को अपनों में बांटना, अपने सहायकों में बांटना, ये उनका प्रमुख कार्य था। इनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, न ही कोई इनके पास अपना ब्यूरोक्रेसी थी, ऑफिसर्स थे, लेकिन फिर भी इनका राज्य चल रहा था। ये चीफ एंड चिफ्टम्स थे। लिटिल मौर्यन पीरियड में जो सबसे महत्वपूर्ण फेजेस है, इस फेज को जानने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। रिसोर्स टेक्स्ट का। संगम लिटरेचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। इनके बारे में संगम लिटरेचर हमें बहुत कुछ सूचनाएं देती है। अगर आप बात करें तो हमने पिक्चर को देखा, हमने उन चीज़ों को देखा, हमने उन टॉपिक को देखा जो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जो ये बता रहे थे कि साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के साथ साथ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में छोटे छोटे राजाओं का शासनकाल था। इन लोगों के शासन को निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ा, हमने गुप्ता रूलर्स के बारे में उनके राज्यों को पढ़ा, लेकिन हम गुप्ता रूलर्स के पहले हमें उन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मिड इंडिया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। सातवाहन के साथ साथ वो रूलर्स जो उन रूलर्स में जो छोटे छोटे राजा थे। मेनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहन्स हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया फ्रॉम 2nd century BC to 2nd century AD, and the Sakas, a people of Central Asian origin, who established kingdom in the northwestern and western part of the subcontinent. They derives revenue from the long distance tribes. कई सरदार कई जो छोटे छोटे चिफ्स थे जो लंबी दूरी से व्यापार कर राजस्व जुटाते थे। दूर दराज के क्षेत्रों में व्यापार करने का इनका व्यापारिक मार्गों का निर्माण, उनकी सुरक्षा प्रदान करने का काम जो इन्होंने किया, इससे इनको अधिक लाभ हुआ। इनमें मध्य और जो मिड और नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्रों में शासन करने वाले राजा जैसे सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रांत में पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। इनके सामाजिक उद्गम के बारे में, उनके सामाजिक ओरिजिन, जो सोशल ओरिजिन है, उसके बारे में जानकारी तो हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने को ऊंचे स्थान पे स्थापित कर लिया। उन्होंने अपने को यूनिक ब्राह्मण
की टाइटल दे दी। माय डियर, हम जब 4.2 टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। लाइक डिवाइन किंग, द टॉपिक 4.2 इज डिवाइन किंग। In this topic, author want to clarify you that how the new rulers they entitled himself as a divine title, like Devputra, like Yoni Brahman, like खखरात वस नीरव शेष करस, तीय समुद्र पीत तोय वाहन, चक यवन पहलव निसूदनस. This is the very long titles which are taken by the small rulers. But without any hesitation, we can say that their ruling time period was very vast. अगर आप बात करें दैविक राजा की, डिवाइन किंग की, तो राजा के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन, एक तरीका, एक वे वो था देवी देवताओं के साथ अपने को जोड़ लेना। मध्य एशिया, जो मिडिल एशिया से लेकर जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स था, वहाँ तक के क्षेत्रों में भारत तक शासन करने वाले जो कुषाण शासक थे, फर्स्ट सेंचुरी एडी टू फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बीच, फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फर्स्ट सेंचुरी एडी के बीच के जो शासक थे, कुषाण शासक, सबसे अच्छा उदाहरण इसका प्रस्तुत किया जाता है। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपराओं के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के किंगशिप की बात, राजधर्म की बात को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा कि सर्वोत्तम प्रमाण उन्होंने अपने सिक्कों और मूर्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया, वो यूनिक है। उन्होंने अपने सिक्कों पे अपने लिए कुछ टाइटल्स लिखवाए, महारजसी रजति रजस सर्वलोगस ईश्वरस माहेश्वरस। सिक्कों को देख के हम ये बता सकते हैं कि वो सिक्कों पा सकते हैं। बेसिलियास बेसिलियान जैसे टाइटल्स सुन लेते थे। राजा महारजति रजति रजस, महाराजा राजाओं का राजा, बिमकट विशस, बिमकट वाइसेस। और अपनी टाइटल देवपुत्र की लेते थे। देवपुत्र जो उनकी टाइटल्स थी वो चीन के शासकों की तरह थी, जो स्वर्गपुत्र की टाइटल लेते थे चीन के शासक, ठीक उसी तरीके से इनकी टाइटल देवपुत्र की रही। तो सबसे महत्वपूर्ण है उनकी टाइटल, इसको इन लोगों ने लिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट एक स्थान है, माट एक जगह है। माट से एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। ये मूर्तियां क्यों लगाई गई थी, विशालकाय मूर्तियां? निश्चित रूप से उन्होंने अपने को देवताओं के समतुल्य स्थापित किया था। देवता के रूप में उन्होंने अपनी मूर्ति बनवाई थी। अफगानिस्तान में भी मथुरा के माट की तरह ही एक देवस्थान या देवकुल प्राप्त हुआ, जिसमें इस तरह की मूर्तियां लगी हुई हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, अपनी तुलना, अपनी समानता, अपना कंपैरिजन देवताओं से करना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने इस तरह की बड़ी बड़ी मूर्तियां और प्रतिमाओं को लगाया। कुछ कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे जो टाइटल देवपुत्र की वो लगाई थी, वो भी टाइटल इसी बात को सिद्ध करने का प्रयास करता है। संभवतः चीनी शासकों ने देवपुत्र की टाइटल चीन के शासकों से प्रेरित होकर लगाई थी, जैसे चीन के शासकों की टाइटल स्वर्गपुत्र की थी, हेवन सन की थी। उस तरीके से उन्होंने अपने को डिवाइन किंग कहा। 4th सेंचुरी तक आते आते नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक पावरफुल डायनेस्टी दिखाई देती है, और ये पावरफुल डायनेस्टी हमें गुप्तों की डायनेस्टी मिलती है। गुप्ता डायनेस्टी को शुरू करने के पहले सबसे 2-3 चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का इतिहास 2 भागों में बढ़ जाता है। मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण हुए, फॉरेन आउटसाइडर्स आए, फॉरेनर्स आए, और इन आक्रमणकारियों ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, वेस्टर्न रीजन में तथा मिड इंडिया के बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया। दूसरी ओर सुंग, कण्व, आंध्र सातवाहन और वाकाटक आदि जैसे राजवंश भी स्थापित हुए।
ये दोनों प्रवृत्तियां साथ साथ हो रही थी। हियर आई वांट टू क्लेरिफाई यू दैट दे वर नॉन क्षत्रिय किंग। We will read the non-Kshatriya king topic in chapter 3, but here that is the very important thing which I want to clarify you, that during later Mauryan period there was changes which was introduced in Indian continent. Two types of rulers they emerged. First, they were outsider. They established their state, particular western frontier, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, पश्चिमी क्षेत्र पे और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर उन्होंने राज्य स्थापित किया। और ठीक उसी तरीके से जो मौर्यों का क्षेत्र था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्टिनेंट, उन क्षेत्रों पे या अधिकांश भारत पे सुंग, कण्व, आंध्र, सातवाहन और वाकाटक जैसे राजवंश स्थापित हुए। इनके बारे में जानकारी के लिए जो सोर्स है, जो हिस्ट्री को समझने के लिए जो हमारे पास सोर्स है, वो सोर्स क्या है? द सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बौद्धिस्ट टेक्स्ट, जैनिज्म टेक्स्ट, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम कालिदास का, थेरावली जिनकी रचना 14th सेंचुरी के में हुई थी, जैन लेखक मेरुतुंग ने किया, अयोध्या के लेख धनदेव का, जिससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध याग किए, यह पुष्यमित्र याज यामा उस पर अभिलेख है, बेसनगर का लेख, साथ ही साथ जो यूनानी इतिहासकार थे उनके भी अभिलेख हैं, जिसे नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी ने लिखा लैटिन भाषा में 77 AD का, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो 80 to 115 AD के बीच लिखी गई एक अज्ञात लेखक के द्वारा यूनानी भाषा में। पेरिप्लस का अर्थ है किस तरीके से नौकाओं को चलाया जाए, एरिथ्रिशियन लाल सागर से संबंधित है, जिससे हमें व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। ज्योग्राफी टालमी का सातवाहनों के अभिलेख, नानाघाट अभिलेख जो नागरिका का था, सातकर्णी प्रथम की जो रानी थी, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का था, जूनागढ़ अभिलेख शासक रुद्रदामन का 150 ईस्वी संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख। सिक्के क्वाइंस भी हमें इस टाइम पीरियड के इंफॉर्मेशन हिस्ट्री को बताते हैं। मौर्य काल के पतन के बाद, मौर्य काल के डिक्लाइन के बाद हमें भारत में एक लंबा साम्राज्य दिखाई देता है। इंडो ग्रीक, शक, पार्थिया या पहलव या कुषाणों का भारत पे आक्रमण किया था, एक बड़े क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया। इंडो ग्रीक के बारे में जब हम क्वाइंस पढ़ेंगे, एक टॉपिक है आपके इसी में चैप्टर टॉपिक में, आई थिंक 6 है क्वाइंस, तो वहाँ हम पढ़ेंगे तो इंडो ग्रीक्स का नाम आएगा। ये कौन थे इंडो ग्रीक्स? बेसिकली मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बैक्ट्रिया, इट मीन्स जो अफगानिस्तान के यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण करना था। लगभग 250 ईस्वी 250 AD, 250 AD, 250 BC, 250 BC, again I am saying the date is 250 BC, ईसापुर 250 ईसापुर में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोटस एवं पार्थिया के गवर्नर एक्सस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बैक्ट्रिया के दूसरे राजा डायोडोटस II अपने देश को सेल्यूकस के साम्राज्य से पूर्णतः अलग कर लिया और सबसे पहला यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था। भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत इंडियन कॉन्टिनेंट पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था, जो 220 220 to 175 BC में इंडिया पर अटैक किया। 183 के लगभग उसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीत भी लिया, साकल को अपनी राजधानी बनाया, अपनी कैपिटल बनाया, और फिर डेमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों में अपने सिक्के चलवाए, इंडो ग्रीक क्वाइन चलवाए, ग्रीक और खरोष्ठी लिपियों में। इस प्रकार डेमेट्रियस फर्स्ट, दैट वाज the first Indo-Greeks who attacked on India, and he conquered the big part of the Punjab and he established their capital Sakal. डेमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की तरफ अपनी टाइटल अपनाई, भारतीय राजाओं की तरफ उसने अपने उपाधि धारण की। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर स्टूडेंट, कि उसकी टाइटल्स जो थी वो भारतीय राजाओं की तरह थी।
इसी समय बैक्टीरिया में यूक्रेटाइडिस की अध्यक्षता में भी विद्रोह हुआ और डेमेट्रियस को बैक्टीरिया से हाथ धोना पड़ा। पहले डेमेट्रियस और डेमेट्रियस के समय विद्रोह हुआ यूक्रेटाइडिस का और डेमेट्रियस को शासन उसके हाथ से जाता रहा। यूक्रेटाइडिस भी भारत की तरफ बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। याद रखिएगा, यूक्रेटाइडिस तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाता है जबकि डेमेट्रियस साकल को अपनी राजधानी बनाकर शासन करता है। इस प्रकार भारत में यवन साम्राज्य दो राजवंशों में बढ़ गया, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइडिस। हम डेमेट्रियस वंश के कुछ राजाओं के नाम आपको बता दें। मिनेंडर का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। एक लंबा मिनेंडर जो था वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौशाम्बी रेह के पास उसके सिक्के मिले, भड़ौच के पास उसके खूब सिक्के मिले। नागसेन के बीच उसका विवाद मिलिंद पन्हो में संकलित है। और यूक्रेटाइडिस वंश में भी कुछ शासकों के नाम थे। फिलहाल ये तो इंडो ग्रीक शासकों का कुछ थोड़ा सा परिचय है। शक शासकों के बारे में भी जान लें। शक रूलर्स आपकी बुक में दिया हुआ है। बुक में कहता है, मैं अगेन आपको पढ़ता हूँ कि कहता है कुशानास the first century BC, the kingdom who ruled over the vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India. Their history has been reconstructed from the inscriptions and textual traditions. Notion of kingship, they wished to project perhaps the evidence in their coins and the sculpture. This information for the Kusanas. But before, the Sakas ruler also explain here. The northwestern and western part of the subcontinent derived revenues, especially rulers कौन कौन थे? कहता है सेकेंड सेंचुरी BC to second century AD, the Sakas, a people of Central Asian origin, who established kingdom in the northwestern and the western part of the subcontinent. These were the Sakas. My dear, we have to understand about some Sakas ruler also and their names. यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। इंडो ग्रीक के बाद भारत पर आक्रमण किया शकों ने भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने यूनानियों से अधिक भाग पर कब्जा कर लिया। शकों के शक थे वो कुल 5 शाखाओं में बटे थे। 5 ब्रांचेस थे शकों के। इनकी प्रथम शाखा अफगानिस्तान में बस गई। भारत में मुख्यतः 2 शाखाओं में विभाजित थे। प्रथम उत्तरी क्षत्रप कहलाते थे जो तक्षशिला और मथुरा में थे, और दूसरा पश्चिमी क्षत्रप कहलाते थे जो नासिक और उज्जैन में थे। भारत के शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्षत्रप एक टाइटल थे। क्षत्रप जैसे कुषाणों के समय वाराणसी का 2 क्षत्रप थे। 2 क्षत्रप शासन प्रणाली थी बनारस में। खरपल्लान और वनस्पर जैसे 2 शासकों का नाम पता चलता है। मथुरा के शक, ऐसा माना जाता है कि मथुरा के जो शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, जिन्हें 57 BC में विक्रमादित्य नामक शासक ने पराजित किया, जिससे वे भागकर मथुरा आ गए। इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पर एक नवीन संवत विक्रम संवत या मालव संवत 57 की नींव पड़ी। मथुरा का प्रथम शक शासक राजुल या राउल था। राजुल के बाद उसका पुत्र सोडास राजा हुआ। और नासिक के क्षत्रपों के 2 प्रसिद्ध शासक हुए बूमक और नहपान। वे अपने आप को क्षहरात क्षत्रप कहते थे। और सबसे प्रसिद्ध शक शासक नहपान था। नहपान जिसने काठियावाड़, दक्षिण गुजरात, पश्चिम मालवा, उत्तर कोंकण, पूना आदि के क्षेत्रों को जीता। उसने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहन राजाओं से छीना था। याद रखिएगा, सातवाहन और शकों के बीच आपस में डिस्प्यूट हुए, जिसमें सातवाहन राजाओं से नहपान ने एक बड़ा क्षेत्र जीत लिया, जिसमें काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, पूना और राज्य शामिल थे। पेरिप्लस के अनुसार इसकी राजधानी मिन नगर भड़ौच के बीच थी। सातवाहन शासक गौतम सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया और मार डाला। इसकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें जोगलथम्बी से प्राप्त होते हैं, जहाँ नहपान के बहुसंख्यक सिक्के, अधिकांश सिक्के जो नहपान के द्वारा चलाए गए थे, उसको गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनर्अंकित और पुनर्टंकित करा करके एक नए रूप में चलाए गए। नहपान का जामाता या दामाद
सातवाहन शासक ऋषभदत्त या उषादत्त था। शकों की जो मालवा ब्रांच थी वो अत्यधिक पावरफुल थे अपेक्षाकृत सभी शासकों में, शक शासकों में। इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक मालवा का या उज्जैन का पहला जो शक शासक था, पावरफुल था, उसका नाम रुद्रदामन है। रुद्रदामन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था सुदर्शन लेक। उस सुदर्शन लेक में मैंने रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की बात की थी, 150 BC की बात की थी। रुद्रदामन 130 to 150 AD के बीच शासन करता है और इसी समय उसने सुदर्शन लेक का निर्माण कराया। रुद्रदामन शक था मालवा ब्रांच का। उसके विषय में जानकारी का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। उससे पता चलता है कि उसके राज्यपाल सुविशाख ने इस झील, सुदर्शन झील के बाद का पुनर्निर्माण कराया। रुद्रदामन व्याकरण, पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स, म्यूजिक, लॉजिक का महान पंडित था। व्याकरण का, राजनीति का, संगीत का, तर्कशास्त्र का महान विद्वान था। मालवा के शकों के में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा क्षेत्र पर चांदी के सिक्के चलाए, व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। तो ये था शकों के बारे में सोचना। अब कुषाणों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कुषाण, अब डिवाइन किंग की बात आपके बुक में है पॉइंट 4.2 में। ये कुषाण कौन थे? कुषाणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमें कुषाणों के अभिलेखों से सूचना मिलती है, कुषाणों के कॉइन से सूचना मिलती है। और जो बातें हमने की थी, जैसे अभी कुषाणों के बारे में जानना हो, सबसे पहले कुषाण जो मिड एशिया या सेंट्रल एशिया के निवासी थे, पश्चिम चीन में यूची जाति के थे। लगभग 165 BC में इसके पड़ोसी कबीले हिंगनू से यूचियों के नेता को मारकर उन्हें पश्चिम क्षेत्र छोड़ने को बाध्य कर दिया। यूची जो जाति थी उसकी हिंगनू कबीले से युद्ध हुआ। हिंगनू कबीला अधिक पावरफुल था, इसलिए उन्होंने 165 BC में यूचियों को पराजित किया। यूचियों को क्षेत्र छोड़ के हटना पड़ा और इस क्षेत्र में यह कबीला 2 शाखाओं में विभक्त होगा। छोटा यूची जो तिब्बत की ओर चला गया, और जो बड़ा यूची था वो पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के शासकों को पराजित करते हुए वो भारत की तरफ पहुंचा। मैं आपको ज़्यादा गहराई में जाकर इस बात को नहीं बताऊंगा। कुषाणों की 5 शाखा थी, यूची, हियूमी, काओफुसु। तो हम इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आप सीनियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो शाखा जो बड़ी यूची थी, जो पार्थिया बैक्ट्रिया होते हुए भारत की तरफ बढ़ी। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कड़फाइसिस नामक, कुजुल कड़फाइसिस, KUZUL, कुजुल KUD कड FISI, कुजुल कड़फाइसिस नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने केवल तांबे के सिक्के चलाए। याद रखिएगा, कुजुल कड़फाइसिस के सिक्के, क्वाइंस जो हैं वो तो तांबे के हैं। कुजुल के बाद उसका पुत्र बिम कड़फाइसिस गद्दी पे बैठा। चाइनीज टेक्स्ट हाउ हानसू से पता चलता है, चाइनीज लिटरेचर हाउ हानसू से पता चलता है कि उसने तिएंचू की विजय की, तब वही अपने सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। तिएंचू का समीकरण सिंधु द्वारा सिंचित पंजाब क्षेत्र से किया जाता है। इस प्रकार उसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिम कड़फाइसिस भारत में कुषाण का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सोने तथा तांबे के सिक्के चलवाए। उसके सिक्कों पर एक ओर यूनानी लिपि है और दूसरी ओर खरोष्टी है, मतलब ग्रीक और खरोष्टी में उसने 2 भाषाओं में अपने अभिलेख लिखवाए। उसके सिक्कों पर शिव की आकृति है, नंदी है, बैल है, त्रिशूल है, जो ये बात प्रूव करता है कि वो भारत में आकर के भारतीय संस्कृति में अपने को स्थापित कर लिया और शैव धर्म स्थापित कर लिया, शैव धर्म में अपने को दीक्षित किया। बिम कड़फाइसिस के बाद उसका पुत्र गद्दी बैठा।
कनिष्क उसका नाम था। 78 से 105, 78 to 105 BC के बीच। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, जिसकी दूसरी राजधानी मथुरा में थी। कनिष्क के जो राज्यारोहण की जो तिथि है 78 ईस्वी, यहीं से भारत में शक संवत का सूचक है। कनिष्क के चीन से युद्ध हुए, लेकिन वो चीन से विजयी नहीं हुआ, लेकिन भारत में एक सफल शासक के रूप में कनिष्क प्रसिद्ध हुआ। कनिष्क के शासनकाल में ही 4th बौद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। यहीं पे हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गई। हम इसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग में जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पे एक टॉपिक आएगा हीनयान एंड महायान, तब हम उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कनिष्क के समय में ही भारत में दो नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ, जैसे गांधार कला और मथुरा कला कहते हैं। आर्ट ऑफ स्कूल है, गांधार आर्ट ऑफ स्कूल एंड मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली के कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। जैसे गांधार कला शैली में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। गांधार कला शैली में इसे इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बौद्धिस्ट शैली भी कहते हैं। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, इसलिए इसको गांधार कला शैली भी कहते हैं। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्व की जो मूर्तियां हैं वो काले स्लेटी पत्थर से बनाई गई हैं, और बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हैं उन मूर्तियों पे यूनानी देवता अपोलो की नकल का आरोप लगाया जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बुद्ध मूर्तियां बनी हैं वो यूनानी देवता अपोलो का नकल है। बुद्ध के शरीर को बड़ा मांसल और बलशाली दिखाया गया है। इसमें भौतिकता का पुट स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक विपरीत मथुरा कला शैली या मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल, इस कला शैली का जन्म कनिष्क के समय मथुरा में हुआ। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ, रेड सैंडस्टोन का। इसमें बौद्ध, हिंदू, जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। तीनों धर्मों को, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई। बुद्ध का प्रथम मूर्ति का निर्माण का श्रेय 1st सेंचुरी AD में मथुरा कला को ही दिया जाता है। मथुरा कला शैली में ही बुद्ध की पहली मूर्ति बनी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा और 13 मंजिलों का एक टावर बनवाया था। इसके ऊपर एक लौह छत्र स्थापित किया था। इसके पास एक विशाल संगाराम निर्मित किया था। ये संगाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया है। कनिष्क ने जो बौद्ध धर्म से बड़ा प्रभावित था, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से बहुत प्रभावित था, उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा और 13 मंजिलों का एक टावर बनवाया और उसके ऊपर एक लोहे का छत्र लगवाया। उसने कई नगर का निर्माण किया, जिसमें कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप 2 नगर महत्वपूर्ण है, जिसको कनिष्क ने बनवाया। चिनांसुक मार्ग या सिल्क रूट जिसे कहते हैं, कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क रूट को 3 मुख्य शाखाओं पर अपने नियंत्रण स्थापित किया। कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग जो यूरोप को जाता था, मरो से फरात नदी होते हुए रूम सागर पर बने बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग, और भारत से लाल सागर तक जाने वाले मार्ग, इन तीनों क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार किया। कुशाणों ने ही सबसे प्योर गोल्ड कॉइन इंडिया में चलाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कुशाणों ने सर्वाधिक ताम्र सिक्के भारत में चलाने का श्रेय भी प्राप्त करता है। विद्वानों का आश्रय दाता भी कुशाण को माना जाता है, कनिष्कों को माना जाता है। कनिष्क की सभा में पार्श्व, वसुमित्र और सुघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक उसकी राज्यसभा के रत्न थे। कनिष्क का पुरोहित संघरक्ष था। इस प्रकार कुशाणों के बारे में हमें एक छोटी सी जानकारी, छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ें डिवाइन किंग को, तो यहाँ भी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे 1 मीन्स द क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज द आइडेंटिफाई विद द वेराइटी ऑफ डिटीज। दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ट exemplified by Kusanas 1st century BC to 1st century CE, who ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India. Their history has been reconstructed from inscriptions and textual traditions. The notion of kinship they wish to project
are perhaps best evidence in their coins and sculpture. Colossal statues of the Kusanas rulers have been found installed in a shrine at Mat near Mathura, Uttar Pradesh. Similarly, statues have been found in the shrine of Afghanistan as well. What was the reason behind that? Some students believe that this indicate that the Kusanas considered themselves the godlike. Many Kusana rulers also adopted the title Devputra or son of God, possibly inspired by the Chinese ruler called themselves the son of heaven. By the 4th century, there is evidence of the largest status, including the Gupta Empire, many of these depending on the Samantas. My dear student, what we read, that is the total history of the later modern period king. As far as the matter of the other king, we will try to understand. हम उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही. हम फिर गुप्तों के बारे में, इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. तो गुड बाय एंड टेक केयर.